जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको मैं बैथल परिवार की तरफ से आज हमारे संडे की सेवा में फिर से स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक हैं। आइए हम बाइबल वर्स पढ़ेंगे। मैं फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स 9 में पढ़ दूंगी, आप सब अपने बाइबल में देखिए। 1 Peter chapter 2 verse 9. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people, that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light. Amen. आइए अभी हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। ये सेवा उनके हाथों में रखेंगे। आप सब अपने आंखों को बंद करके प्रभु को प्रार्थना कीजिए। Praise the Lord. Heavenly Father, I thank you. I give you all glory, honor, and praise, Father. Thank you for your beautiful presence and this beautiful time that you have gifted us. Thank you for keeping us safe and alive, Lord Jesus. Thank you for keeping us away from the pandemic and blessing us with your hands of blessings, Father. Father, I glorify your holy name. I bless your holy name because you are the Lamb that was slain. You are worthy of all praise, Jesus. You are the King of kings, the Lord of lords, Father. You are the name above all names, the mighty God. Father, I thank you for who you are. Father Jesus, I thank you for the cross that you have saved us, gifted us salvation, and forgiven us all our sins. Father, thank you for sprinkling your blood of Christ upon us so that we are safe in this time of trouble, Father. Father, at this moment, I pray for the whole world. I pray for whole India and all the states and Northeast, Lord Jesus. I pray that your presence, your protection, I proclaim upon each and every individual of this world, Lord Jesus. Father, at this time, I seek your presence throughout the service, Lord Jesus. I welcome you, Holy Spirit, that you guide and protect us and surrender all the service, the worship team, our pastor unto your blessed hands. Speak to us whatever you want, Lord Jesus, so that we can follow your word, Lord Jesus. I surrender all our prayers into your blessed hands. In Jesus' precious name, we surrender all our prayers. Amen. आइए अभी हमारे बीच में हमारी बहन प्रतिष्ठा है, हम उनसे स्पेशल गाना सुनेंगे। उसके बाद हम समय स्तुति आराधना के भाइयों को भाई बनी और भाई दोव को देंगे और उसके बाद हम प्रभु की बाइक को सुनेंगे हमारे पास्टर अर्पण से। धन्यवाद। Praise the Lord. Porque alguém a nossa mãe fica porque alguém a curar porque alguém a nossa mãe fica
Praise the Lord, Bethel Church, जय मसीह. We are so glad to see all of you. हमें आप सबको आज के दिन फिर से हमारे साथ सेवा में देख के बहुत अच्छा लगा है. एंड आज का समय फिर से हम परमेश्वर को देंगे और परमेश्वर को दिया हुआ समय कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है ना. तो अभी हम ये समय हम स्तुति आराधना करेंगे और ये हमारा अनुरोध है आप सबसे कि आप जहाँ में बैठे हैं वहाँ पे आप परमेश्वर के लिए अपने हाथों को उठाकर आप परमेश्वर से बातें कर सकते हो. क्योंकि हम जब भी परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, परमेश्वर अपना सिंहासन छोड़ के हमसे मिलने के लिए आता है ना, हमसे बातें करने के लिए आता है. तो अभी इस वक्त हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे और हम एक साथ हम प्रार्थनाओं के साथ हम स्तुति आराधना शुरुआत करेंगे. परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए. फादर वी थैंक यू फॉर दिस टाइम. परमेश्वर पिता, आज फिर से हम एक साथ हैं पिता तेरी स्तुति आराधना करने के लिए. परमेश्वर प्रभु, इस समय तूने हम सबको पहले से सोच के दिया है परमेश्वर प्रभु. और पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि जैसा कभी हम तेरी स्तुति आराधना करने वाले हैं प्रभु, तू हमारे साथ में रहे पिता. हम तेरी आत्मा की उपस्थिति और भी घनिष्ठ तरीके से हम मांगते हैं परमेश्वर प्रभु. At all times we want to be in your presence, Lord. Hallelujah. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands and worship as we lift your holy name. For you are great, you're the miracle so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you're the miracle so great. There is no one else like you. There is no one else like you. महिमा करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं. महिमा करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं. तू शक्तिमान अद्भुत काम तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई. तू शक्तिमान अद्भुत काम तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई. For you are great, you're the miracle so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you're the miracle so great. There is no one else like you. There is no one else like you. नहीं तेरे जैसा कोई. महिमा महिमा datang ki stuti koru, Tuhan dan mohan hoy mohima do koru api datang ki stuti koru, Tuhan dan mohan hoy tumi mohan mohan ka tumi
नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। शक्तिमान अब काम तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। There is no one else like you. Father, we thank you, Jesus, Lord, hallelujah. तेरे जैसा कोई नहीं है, oh यीशु। Thank you, oh Father, the creator of heavens and the earth. Oh, we give you all honor. Oh, hallelujah. Thank you. Thank you for your presence, Lord. Thank you. Hallelujah. Thank you, Father. परमेश्वर पिता, ये पूरा समय हम तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। Father, Lord, may your presence be always with us, we pray, Father. Thank you, Lord. We surrender this whole service unto your hand, Lord. And those who are attending this service, Lord, we pray that they may encounter your love more and more, Lord. Hallelujah. In Jesus' name we ask and pray. And all God's people says, Amen. Amen. प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ में है। अभी हम परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे। आप अपने हृदय को, अपने मन को पूर्ण तरीके से तैयार रखिए। ये समय मैं पास्टर अर्पण को देना चाहूँगा। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। प्रभु आपके साथ में हमेशा रहे। प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में आप सभी को जय मसीह। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक है और फिर से इंटरनेट के थ्रू आपके घरों में आना और परमेश्वर के वचन लाना मेरे लिए आनंद और खुशी की बात है। हम लोग लॉकडाउन के बीच में हैं। अभी 3 तारीख को लॉकडाउन खोलने का बात है, पर हमें पता नहीं अभी उससे आगे क्या होगा, परिस्थिति कैसे होगा। पर बाइबल में आप और मुझे एक ही चीज़ सिखाया है और वो क्या है कि प्रत्येक परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद दो। आमीन। आप और हम परमेश्वर के बच्चे होने के नाते आप और हमें परमेश्वर का हर एक परिस्थिति में धन्यवाद देना बहुत ही ज़रूरी है। आज जो वचन मैं आपके बीच में लेके आया हूँ वो है, उसका शीर्षक है आवर आइडेंटिटी। हमारा पहचान क्या है ना। मैं कौन हूँ, सिंपल वर्ड में हु एम आई। आज बहुत सारे संसार में ऐसे व्यक्ति हैं, चर्चेस में ऐसे व्यक्ति हैं, हमारे परिवार में ऐसे व्यक्ति हैं जो ये नहीं जानते हैं कि वो कौन है। वी हैव आवर आइडेंटिटी प्रॉब्लम। एक सबसे संसार का सबसे बड़ा क्वेश्चन भी वही है आज कि हु एम आई। जवान लोग डिप्रेशन में जाते हैं, गलत काम करते हैं क्योंकि उन लोग को पता नहीं है कि वो कौन है। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं और मैं आपको बोलूं या कि आप कौन है, तो शायद आपका एक सिंपल आंसर ये होगा कि आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ, या मैं एक लॉयर हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, या मैं एक टीचर हूँ, या मैं एक साधारण मैं हाउसवाइफ हूँ, या मैं एक स्टूडेंट हूँ। बट वो आपका पहचान नहीं है प्रियो। वो दैट इज समथिंग दैट यू डू, इट्स नॉट हु यू आर। वो आप क्या करते हैं वो आप वो बता रहे हैं,
पर आपका आइडेंटिटी वो नहीं है प्रियो। हमारा आइडेंटिटी बहुत ही अलग है। और आज पूरा विश्व में सब लोग अपना आइडेंटिटी को ढूंढने के लिए वो कोशिश कर रहा है। और बहुत लोगों को आइडेंटिटी क्राइसिस है। उन लोग को पता नहीं है वो कौन है, इसलिए वो किसी और के जैसा वो होना चाहते हैं। कैसे? महंगा गाड़ी खरीद के, महंगा महंगा कपड़ा लगा के, सोना चांदी लगा के, वो ये दिखाने के लिए वो चाहते हैं कि मैं कुछ हूँ, आई एम समथिंग, ना दूसरा को दिखाने के लिए। बट उन लोग के अंदर में भी एक क्वेश्चन, एक डीप क्वेश्चन रहता है कि हु एम आई। आज हम लोग ये कोरोना के महामारी में हैं और हम लोग जानते हैं कि बहुत लोग को ये रियलाइजेशन में आया है कि आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूँ ना। बहुत बड़े बड़े आदमी लोग, बहुत प्रोफेशनल्स लोग, बहुत धनवान लोग, शायद कल तक वो सोच रहे थे कि आई एम समथिंग, बट आज उन लोग को रियलाइजेशन में वो आ रहे हैं कि मैं भी कुछ नहीं हूँ, मेरा पैसा भी कुछ नहीं है। सबसे अमीर आदमी लोग आज ये चीज़ उन लोग को पता चल रहा है कि उन लोग का पैसा भी उन लोग को बचा नहीं सकता है। और एक बड़ा क्वेश्चन क्या आता है इस सब के बीच में कि हु एम आई, मेरा आइडेंटिटी क्या है प्रियो। मैं आपको एक फ्रेज में पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पे लिखा गया है कि अ पर्सन हु डजंट नो हु ही इज हैज़ नो पर्पज इन लाइफ। अगर एक व्यक्ति को ये पता नहीं है कि वो कौन है, उसका जीवन का कोई भी उद्देश्य नहीं है बोल के यहाँ पे एक ज्ञानी आदमी ने इस प्रकार से उसने लिखा है प्रियो। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आपका आइडेंटिटी कोई दूसरा आदमी नहीं दे सकेगा प्रियो। मैं आपका आइडेंटिटी मैं नहीं दे सकूँगा। उदाहरण के लिए मैंने ये एक पेन लिया है, ये पेन का आइडेंटिटी ये पेन कभी भी नहीं बता सकता है प्रियो। ये पेन का आइडेंटिटी वही आदमी बता सकता है जिसने ये पेन को बनाया है प्रियो। वैसे ही आप और मेरा आइडेंटिटी भी, अगर आपको जानने का मन है कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, तो आपका आइडेंटिटी भी जैसे ये पेन का आइडेंटिटी उसका वो पेन बनाने वाला आप बता सकता है, वैसे ही आप और मेरा आइडेंटिटी भी हमें बनाने वाला जो है वही आप और मेरा आइडेंटिटी बता सकता है प्रियो। और बाइबल में लिखा गया है परमेश्वर आप और मेरा आइडेंटिटी बता सकता है। आमीन। बाइबल में एक बहुत ही सुंदर घटना है। एक व्यक्ति के बारे में उल्लेखन किया गया है। वो व्यक्ति का नाम गिडियन है। और बाइबल में लिखा गया है कि ये गिडियन आदमी अपने आप को ये आदमी सोचता था कि मैं तो इम्पोर्टेंट आदमी नहीं हूँ, मेरा तो कोई भी वैल्यू नहीं है। और बाइबल ये भी कहता है कि ये आदमी बहुत डरपोक आदमी था। एक बार क्या हुआ, जब शत्रु उसका देश में, गिडियन का देश में जब शत्रु लोग आए उसको वार करने के लिए, सब लोग वार में चला गया। इवन बच्चे लोग भी वो लड़ाई करने के लिए चला गया। पर ये गिडियन जो है वो क्या किया, वो छुप के वो एक कोना में वो दुश्मन से वो छुप के वो रहा बोल के बाइबल में इसके बारे में उल्लेखन किया गया है प्रियो। इसका मतलब क्या है कि गिडियन जो है वो बहुत ही डरपोक आदमी था प्रियो। पर बाइबल में गिडियन को परमेश्वर क्या बोलता है, गिडियन अपने आप को क्या सोचता है कि मैं एक डरपोक आदमी हूँ, मेरा कोई वैल्यू नहीं है। पर देखिए बाइबल में जजेस 6 के बारे में लिखा गया है, प्रभु बोलता है द लॉर्ड इज विथ यू माइटी वॉरियर गिडियन। प्रभु गिडियन को बोलता है कि परमेश्वर तेरे साथ है गिडियन, तू क्या है, तू एक साहसी लड़ाई करने वाला व्यक्ति है। प्रियो, प्रभु गिडियन का कमजोरी को नहीं देखता है। प्रभु गिडियन का एक्सक्यूज मी मन में जो वो फील करता है उसको नहीं देखता है, परंतु प्रभु गिडियन का क्या को देखता है, अंदर में उसका आइडेंटिटी को प्रभु देखता है। और प्रभु बोलता है कि गिडियन तू क्या है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉरियर, तो बहुत ही एक बलवंत लड़ाई करने वाला व्यक्ति है बोल के बाइबल में इसको उल्लेखन किया है प्रियो। आज मुझे पता नहीं आप अपने बारे में आप क्या सोचते हैं, मुझे पता नहीं आपके परिस्थिति की वजह से आप क्या सोच रहे हैं, आज की ये बीमारी के डर की वजह से आप अपने आप को क्या सोच रहे हैं प्रियो। पर मैं आपको बताना चाहूँगा परमेश्वर के मन में आपके लिए विचार अलग है। परमेश्वर के
परमेश्वर के दिल में आपके लिए एक जगह अलग है। जब प्रभु आपको देखता है तो प्रभु का दृष्टिकोण जो है आपको देखने का वो अलग है प्रियो। आज हम लोग बाइबल से देखेंगे। मैं आज आपको 3 ऐसे चीज में बताना चाहूंगा जो परमेश्वर आप और मुझे आइडेंटिटी देता है, जो परमेश्वर आप और मुझे देख के, जो परमेश्वर आप और मुझे बुलाता है। आप और मेरा आइडेंटिटी परमेश्वर के नजर में बहुत ही अधिक है प्रियो। यू आर समबडी। आप कभी भी मत सोचे कि आई एम नोबडी, मैं कुछ भी नहीं हूँ, ऐसा कभी भी मत सोचे। प्रभु आपको बोल रहा है कि यू आर समबडी। आमीन। मैं अनुरोध करता हूँ आप अपने आप को इस समय, आप जैसे भी ये ऑनलाइन के द्वारा आप ये वीडियो देख रहे हैं, प्रचार को देख रहे हैं, आप अपने आप को बोलिए कि आई एम समबडी। आमीन। आई एम समबडी। नंबर 1 देखिए प्रभु क्या बोलता है। फर्स्ट पॉइंट प्रभु बोलता है कि यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड। आमीन। वचन में लिखा गया है कि जब आप और हम अपने पापों से हम लोग पश्चाताप करते हैं और हम प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, हम लोग क्या विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मनुष्य बन के, परमेश्वर मनुष्य बन के पृथ्वी में आया और प्रभु यीशु क्या किया, कलवरी क्रूस में आप और मेरे पापों के लिए मरा और 3 दिन के बाद प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हुआ। अगर आप ये चीज अपने मन में आप विश्वास करते हैं पश्चाताप करने के बाद और अपना मुंह से आप अंगीकार करेंगे कि हाँ प्रभु मेरे पापों के लिए मरा, तो बाइबल में लिखा गया है आपको मुक्ति दिया जाएगा और आप परमेश्वर के बच्चे आपको कहलाएगा प्रियो। मैं ये बाइबल से मैं पढ़ देता हूँ। यूहन्ना 1:12 और 13 में यहाँ पे लिखा गया है, But as many as received him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name, who were born not of blood, not of the will of the flesh, nor of the will of the man, but of God. आमीन। यहाँ पे लिखा गया जिसने भी प्रभु को ग्रहण किया, जिसने भी अपने मुंह से अंगीकार किया और जिसने भी अपना हृदय में विश्वास किया प्रभु यीशु का नाम को, उन्हें प्रभु ने क्या अधिकार दिया, परमेश्वर के बच्चे होने का अधिकार दिया। आमीन। और ये एक शारीरिक संबंध का बच्चा नहीं है, पर ये परमेश्वर की इच्छा द्वारा आप और हम परमेश्वर के बच्चे हुए हैं प्रियो। आज आप और हम एक ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, आप और हम कोई लुच्चा लुफंगा नहीं है, हम लोग जीवित परमेश्वर के बच्चे हैं। आप और मेरा आइडेंटिटी क्या है? आप और मेरा आइडेंटिटी ये है कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं प्रियो। आज आप और हम, हमारे पिता जिसने पूरा स्वर्ग बनाया, जिसने पूरा ब्रह्मांड को बनाया, वो परमेश्वर को आप और आज हम पिता कह सकते हैं प्रियो। आप और मेरा आइडेंटिटी परमेश्वर के लिए अधिक है प्रियो। बहुत बार हम लोग जानते नहीं है कि हम लोग कौन है, इसलिए हम लोग अपने आप को इतना नीचे देखते हैं कि वो हमारा जीवन में भी क्या होता है, वो प्रकट हो जाता है। मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा। अंबानी का बेटा जो बहुत ही अमीर है, भारत के सबसे अमीर आदमी, अंबानी का बेटा कभी भी रास्ता में जाके भीख नहीं मांगेगा। कभी भी किसी को नहीं बोलेगा कि भाई 1 रुपये दे दो, भाई 5 रुपये दे दो, चाय पीना है। वो क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि उसको पता है कि उसका बाप कौन है, और इसलिए उसको ये भी पता है कि उसका बाप कौन है तो वो भी कौन है। इसी तरीक़ा से प्रियो, जब तक आप और हम नहीं जानते हैं कि हमारा पिता कौन है, जब आप और हम नहीं जानते हैं कि हमारे लिए कौन वो कलवरी क्रूस में मरा प्रियो, तब तक आप और मेरा आइडेंटिटी भी हमें नहीं मिलेगा प्रियो। पर आज मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप और मेरा परम पिता जो है, आप और मेरा फादर जो है, वो पूरा सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है प्रियो। और वो पिता होने के बावजूद आप और हम क्या है, उनके बच्चे हैं। आमीन। और आज आप और हमको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, हमारा चरित्र भी अलग होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अंबानी का बेटा का चरित्र अलग है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे भीख मांगने का कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा पिताजी बहुत अमीर है। वैसे ही आप और मुझे भी जानना बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि परमेश्वर पिता हमारा पिता है, हमारा चरित्र भी क्या होना है, अलग होना है। यहाँ पे बाइबल में देखिए एफिसी के 2:10 में पौलुस यहाँ पे क्या बोलता है। एफिसी 2:10 में यहाँ पे लिखा गया है, For we are his workmanship, created in Christ Jesus
for good works who God prepared beforehand that we should walk in them. आमेन। यहाँ पे लिखा गया है कि हमें परमेश्वर ने क्या बनाया है? हमें बनाया है, प्रभु यीशु के जैसा ही बनाया है। और क्यों बनाया है? भलाई करने के लिए, अच्छे काम करने के लिए बनाया है प्रियो। आप और हमें ऐसे टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं बुलाया है। आप और हमें ऐसे खाने के लिए, सोने के लिए, उसके बाद अंतिम में जाके मरने के लिए नहीं बनाया है। परमेश्वर ने आप और हमें भले कामों के लिए बनाया है प्रियो। बाइबल में लिखा गया है कि वी आर क्रिएटेड फॉर गुड वर्क्स। आमेन। इसलिए विश्वासी होने के बाद, एक क्रिश्चियन होने के बाद हम लोग अच्छे काम करते हैं, हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं, हम लोग गलत चीज़ नहीं देखते हैं, हम लोग दूसरे के बारे में गंदा चीज़ नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है हम कौन है, क्योंकि हमें पता है कि मेरा आइडेंटिटी कौन है। वही आदमी लोग पाप करते रहेगा, वही आदमी लोग झूठ बोलते रहेगा, वही आदमी लोग गलत देखते रहेगा जिसको पता नहीं है कि वो कौन है। आप सोचिए, अगर अंबानी का बेटा जाके पैसा मांगते रहेगा तो हम लोग क्या सोचेंगे? ये तो पागल हो गया है, क्योंकि इसको पता नहीं इसका बाप कौन है। वैसे ही अगर आप और हम भी पाप में जीते रहेंगे, आप और हम भी गलत काम करते रहेंगे, तो आप और मेरा आइडेंटिटी प्रॉब्लम होता है प्रिय वहाँ पे। पर आज मैं आपको एक गुड न्यूज़ लेके आया हूँ। प्रभु यीशु आप और मुझे बोलता है कि तुम मेरे बेटे हो। आमेन। नंबर फर्स्ट पॉइंट आपको जानना जरूरी है कि आप और हम परमेश्वर, जीवित परमेश्वर के जीवित बच्चे हैं। आमेन। आज से आप कभी भी मत सोचे कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। परमेश्वर बोल रहा है आपको कि तू मेरा बेटा है, तू मेरा बेटी है। आमेन। सेकेंड पॉइंट, यू आर अ मेंबर ऑफ क्राइस्ट बॉडी। आप और हम परमेश्वर का शरीर का क्या है? एक हिस्सा है। परमेश्वर ने आप और मुझे एक परिवार में शामिल किया है प्रियो, और वो परिवार स्वर्गीय परिवार है। शायद मुझे पता नहीं, बहुत में से आप लोग के पेरेंट्स नहीं है, शायद किसी के बच्चे नहीं है, शायद किसी के दोस्त नहीं है, और आप सोच रहे होंगे कि मैं बहुत अकेला हूँ। पर मैं आज आपको बताना चाहूँगा, आप अकेला नहीं है। आप और मेरा परिवार बहुत बड़ा है। बाइबल में लिखा गया है कि एफिसी 4 के 12 में लिखा गया है, प्रभु इस परिवार को क्या बोलता है? परमेश्वर का शरीर बोलता है। आप और हम एक बहुत ही बड़े परिवार में प्रभु ने आप और मुझे शामिल किया है प्रियो। हम जानते हैं एक शरीर का बहुत ज़्यादा अंग होता है, पर उस सब अंग का क्या होता है? एक ही उद्देश्य होता है। अ बॉडी हैज़ डिफरेंट पार्ट्स बट हैज़ ओनली वन पर्पस। एक आँख कभी भी एक हाथ को नहीं बोल सकेगा और इसका कोई काम नहीं है, इसको काट के फेंक दो। ये एक आँख एक हाथ को कभी भी ऐसा नहीं बोलता है प्रियो, क्योंकि ये पूरा शरीर का क्या है? एक उद्देश्य है। वैसे ही आप और हम भी जो परमेश्वर के शरीर में है, हम एक दूसरे को हम कभी भी ये बोल नहीं सकते हैं कि ओ वो भाई का वो कुछ काम नहीं, ओ वो बहन तो ऐसा गलत कर रही है, ओ वो तो ऐसा है, वो तो फलाना, वो ऐसा बोल के हम लोग को किसी का भी जज करना नहीं है प्रियो। क्योंकि हम लोग क्या है? एक शरीर का हम लोग अलग अलग अंग है। बल्कि आप और हमें क्या करना है? एक दूसरे के कमजोरियों के लिए प्रभु से प्रार्थना करना है। देखिए पौलुस यहाँ पे एफिसी 2 के 19 में पौलुस क्या बोलता है? पौलुस बोलता है कि नाउ देयरफॉर you are no longer strangers and foreigners but fellow citizens with the saints and members of the household of God। इसलिए आप और हम क्या है? हम लोग कोई भी फॉरेनर्स नहीं है, हम लोग कोई भी स्ट्रेंजर लोग नहीं है, हम लोग कोई बाहर के लोग नहीं है, पर हम लोग परमेश्वर के परिवार में हम लोग सब क्या है? एक भाई और बहन है प्रियो। परमेश्वर के शरीर के हम लोग विभिन्न अंग है प्रियो। शायद आपका काम अलग होगा, शायद मेरा काम अलग होगा, पर हमारा उद्देश्य क्या है? परमेश्वर में एक है प्रियो। मुझे अभी भी पता है, जब मैं छोटा था, जब मैं क्रिकेट खेल रहा था, एक दिन मुझे बैट करना इतना अच्छा से नहीं आता था, तो मैं बैट करने के समय में मेरा दोस्त ने बॉलिंग करके मेरा मिस जज होके मेरा बैट ऐसे हवा में चला गया और बॉल आके मेरा पैर में बहुत ज़ोर से लगा प्रियो। और जब मेरा पैर को दर्द हुआ, मुझे अभी भी पता है पूरा शरीर को दर्द हुआ प्रियो। और जब
तुरंत मेरा क्या हुआ, मेरा हाथ मेरा पैर में चला गया प्रियो। ये क्या सिखाता है कि कोई भी शरीर में, कोई भी अंग में अगर कुछ चोट आता है तो पूरा शरीर को क्या होता है, दर्द होता है। वैसे ही परमेश्वर के शरीर है हम लोग। अगर कोई भी भाई या बहन को दर्द होता है, कोई भी तकलीफ में, आप और मुझे जानना जरूरी है, क्योंकि हम परमेश्वर के एक शरीर है। हमें एक दूसरे को क्या करना है, प्यार करके बैठना है प्रियो। हम लोग इसे कभी भी नहीं बोल सकते हो उसका अपना जिंदगी छोड़ दो यार, उसका जिंदगी कब्र में जाए। हमको क्या, हम लोग को ऐसे धारणा से जीने के लिए प्रभु ने आप और मुझे नहीं बुलाया प्रियो। आप और मुझे जानना है कि हम परमेश्वर के शरीर के अंग हैं। हिब्रू में मैं यहाँ पे पढ़ना चाहूँगा, हिब्रू 10 में, अगर आपके पास बाइबल है तो आप देख सकते हैं। हिब्रू 10 के 24 और 25 में यहाँ पे लिखा गया है, एंड लेट अस कंसिडर वन अनदर टू स्टिर अप लव एंड गुड वर्क्स। आप और हमें एक दूसरे में क्या करना है, प्रेम और भला काम करके हम लोग को आगे बढ़ना है। नॉट forsaking the assembling of ourselves together as is the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching। यहाँ पे बोला है जैसे परमेश्वर का दिन निकट है, परमेश्वर आने वाला है, आप और हमें क्या करना है, एक दूसरे में संगति में रहना है प्रियो। आप और हमें एक दूसरे में प्रार्थना में आप और मुझे आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि आप और हम परमेश्वर के शरीर के अंग है प्रियो। परमेश्वर आप और मुझे उनके शरीर में बुला रहा है प्रियो। अगर आज तक आपने प्रभु में विश्वास नहीं किया है तो ये आपके लिए एक मौका है प्रियो। आपका जीवन आप प्रभु को दे दीजिए और परमेश्वर के शरीर का हिस्सा आप भी बन लीजिए। आमीन। नंबर फर्स्ट मैंने क्या बोला कि हम लोग परमेश्वर के बच्चे हैं, और सेकंड पॉइंट हमने बोला कि हम लोग परमेश्वर के शरीर के क्या है, अंग है। थर्ड पॉइंट बाइबल ये कहता है कि यू आर एन एम्बेसडर ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। आप और हम परमेश्वर के राज्य का राजदूत है। परमेश्वर ने आप और मुझे एक कार्य दिया है, एक मिशन दिया है। प्रभु यीशु जब मृत्यु से प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हुआ और स्वर्ग जाने से पहले प्रभु यीशु ने मत्ती 28:19 में प्रभु ने सब चेले और आप और मुझे एक ग्रेट कमीशन, एक मिशन प्रभु ने एक कार्य प्रभु ने आप और मुझे दे के किया। और प्रभु ने कहा कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ, जगत के अंत तक जाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में क्या दो, बपतिस्मा दो, बीमारी रोग के लिए प्रार्थना कर दो, और जो सुसमाचार तुम लोग को मिला है वो सुसमाचार क्या करो, पूरा जगत को प्रचार करो बोल के प्रभु ने आप और मेरे ऊपर में प्रभु ने एक कार्य और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है प्रियो। अगर प्रभु चाहता तो वही समय प्रभु यीशु सब चेले को स्वर्ग में लेके जा सकता था प्रियो, पर प्रभु यीशु ने उन चेले लोग को नहीं लेके गया। प्रभु यीशु ने आप और मुझे, अगर प्रभु यीशु चाहते तो आप और मुझे भी आज प्रभु यीशु लेके जा सकता है प्रियो, पर आप और मुझे नहीं लेके जाने का कारण, चेले लोग को नहीं लेके जाने का कारण यही है क्योंकि प्रभु यीशु ने आप और मेरे लिए क्या, एक वर्क, एक कार्य रखा है प्रियो। इसलिए बाइबल में ये भी उल्लेखन किया गया है कि आप और हम परमेश्वर के राजदूत है प्रियो। परमेश्वर का इच्छा को समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का इच्छा क्या है? प्रभु का इच्छा ये है कि स्वर्ग का राज पृथ्वी में क्या हो, विस्तार हो, स्वर्ग का राज पृथ्वी में पूरा हो। जैसे स्वर्ग में जैसे परमेश्वर का संचालन करने का प्रक्रिया है वो पृथ्वी में भी प्रभु बसाना चाहता है प्रियो। इसलिए जब चेले को प्रभु यीशु ने प्रार्थना सिखाया तब वो प्रार्थना में एक पॉइंट ये भी था कि आप, मेरा पिता का इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे कहाँ पे पूरा हो, इस पृथ्वी में पूरा हो प्रियो। और वो परमेश्वर का राज्य कैसा है? परमेश्वर का राज्य धार्मिकता का राज्य है। परमेश्वर का राज्य ऐसा राज्य है वो जहाँ पे मेल मिलाप है प्रियो। परमेश्वर का राज्य ऐसा राज्य है जहाँ पे कोई पाप नहीं है प्रियो। इसलिए वो राज्य का राजदूत, वो राज्य का एम्बेसडर बनाने के लिए प्रभु ने आप और मुझे चूज किया प्रियो। अगर हम लोग डिक्शनरी में देखते हैं राजदूत का अर्थ क्या है, अगर हम लोग डिक्शनरी में इंग्लिश में अगर हम लोग देखते हैं कि एम्बेसडर का अर्थ क्या है, एन एम्बेसडर इज समवन
who works on behalf. एक राजदूत एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी और को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, किसी और के लिए क्या करता है, वो काम करता है प्रियो। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा, हम लोग का भारत में यूएस का एम्बेसी है, तो अगर यूएस का रिलेटेड कुछ भी समाचार, कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर भारत में देना हो तो डोनाल्ड ट्रंप या प्रेसिडेंट जो भी है वो बार बार आके भारत को वो लोग संबोधित नहीं करते हैं, भारत को वो लोग केस हैंडल खुद नहीं करते हैं, पर उन लोग ने क्या किया है, प्रत्येक देश में उनका देश का रिप्रेजेंटेटिव, उनका देश का एक 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 ऐसा व्यक्ति को उन्होंने रखा है जो क्या करता है, उनका देश को वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अगर यूएस का कुछ भी समाचार भारत में देना हो तो वो कौन लेके आता है, वो एम्बेसडर लेके आता है प्रियो। वैसे ही स्वर्ग का एम्बेसडर प्रभु ने आप पर मुझे बनाया है प्रियो। स्वर्ग का एम्बेसडर के लिए प्रभु ने आप पर मुझे चूज किया है। मैं आपको एक मैं बाइबल का वचन में पढ़ना चाहूँगा। दूसरा कोरिन्थी 5:20 में यहाँ पे लिखा गया है, नाउ देन वी आर एम्बेसडर्स फॉर क्राइस्ट, as though we were pleading through, as though God were pleading through us, we implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. यहाँ पे लिखा गया है, पौलुस कोरिन्थी का मंडली को बोलता है, अभी तुम लोग को ये समझना जरूरी है कि तुम और हम क्या है, स्वर्ग का राजदूत है, और पिता क्या करता है, हमें प्रयोग करता है। यहाँ पे लिखा गया है, गॉड इज प्लीडिंग थ्रू अस। पिता आप और मेरे द्वारा क्या कर रहा है, संदेश दे रहा है। कहाँ का संदेश दे रहा है, स्वर्ग का संदेश दे रहा है। और वो संदेश क्या के लिए है, कि पापी मनुष्य पवित्र परमेश्वर के साथ क्या हो, फिर से संगति में हो, फिर से संबंध में हो प्रियो। जो पाप ने मनुष्य को प्रभु से अलग किया था, वो पाप में प्रभु यीशु ने विजय पाया, और ये संदेश को प्रचार करने के लिए, ये स्वर्ग का संदेश को प्रचार करने के लिए प्रभु ने आप पर मुझे राजदूत बनाया है प्रियो। आप और हम एक मामूली आदमी नहीं है। शायद हो सके आप बहुत बड़ा कंपनी में आज काम नहीं करते प्रियो, आज हो सके आपके पास बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, पर आपके पास स्वर्ग का काम है, वो सबसे बड़ा काम होता है। आप और हम अगर प्रभु का सुसमाचार सुना रहे प्रियो, तो आप और हम परमेश्वर के काम कर रहे हैं, आप और हम स्वर्ग के काम कर रहे हैं, क्योंकि आप और हम परमेश्वर के राजदूत हैं प्रियो। तो आज मैं आपको यही इनकरेज करना चाहूँगा वचन के द्वारा, कि मुझे पता नहीं आपका दृष्टिकोण आज कहाँ पे है, आपका सोच कहाँ पे है, आपके परिस्थिति में है, शायद आज संसार में जो हो रहा है उसमें हो सकता है प्रियो, पर आज परमेश्वर का वचन आपको बोल रहा है कि तुम्हारा आइडेंटिटी ये है कि तुम मेरे बच्चे हो। प्रभु यीशु ये बोल रहा है कि तुम्हारा आइडेंटिटी ये है कि तुम परमेश्वर के परिवार का, परमेश्वर के शरीर का एक हिस्से हो, और तुम्हारा पहचान ये है कि तुम परमेश्वर का राजदूत हो। प्रिय, आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हम लोग का जीवन बहुत ही वैल्यूएबल है। हम लोग परमेश्वर के दृष्टि में हम लोग बहुत ही वैल्यूएबल परमेश्वर के बच्चे हैं प्रियो। परमेश्वर ने आप पर मुझे बहुत ज़्यादा प्रेम किया। उन्होंने आप पर मेरे लिए उनका बेटा यीशु ख्रिस्त को कलवरी क्रूस में मरने के लिए उन्होंने दे दिया प्रियो। इतना प्रेम आज कौन करता है प्रियो? वो केवल वही परमेश्वर करता है जिसने अपना प्राण आप पर मेरे लिए दिया है। अगर आपने प्रभु यीशु को विश्वास नहीं किया है तो आज यही समय आप प्रभु यीशु को विश्वास कर सकते हैं। आपको अपने पापों से पश्चाताप करना है और प्रभु यीशु को ग्रहण करना है, और प्रभु आपको एक नया जीवन देगा। आमीन। आइए हम सब मिलकर हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए, आपके ये सुंदर वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप महान परमेश्वर है प्रभु। प्रभु, इस संसार में हमारा कोई पहचान नहीं है, इस संसार में प्रभु हमें कोई जानता नहीं है प्रभु, पर हम धन्यवाद देते हैं आज आपके वचन से आपने हमें उत्साह दिया कि आप हमें प्रेम करते हैं प्रभु। आपके वचन से हमें आपने उत्साह दिया प्रभु कि हम आपके बच्चे हैं प्रभु, हम आपके शरीर के अंग हैं प्रभु, और हम आपके राजदूत हैं प्रभु, आपके राज्य के प्रचार करने वाले लोग हैं पिता।
हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के बाद हम अपने आप को आपके बच्चे जैसे देखना चाहते हैं प्रभु। आज के बाद प्रभु हम अपने आप को आपके शरीर के अंग जैसा हम देखना चाहते हैं प्रभु। हम अपने आप को आपकी राज्य स्वर्ग के राजदूत जैसा हम देखना चाहते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमें इतना बड़ा अवसर दिया प्रभु। आपने हमें इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी पिता, ऑथोरिटी प्रभु आपने हमें दिया पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस पूरा हफ्ता हम आपके हाथ में रखते पिता। हमारे परिवार, हमारे शहर, हमारे देश को पिता, पूरे जगत को हम आपके हाथ में रखते पिता। हमें अनुग्रह करें पिता। सब विधि प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में हम मांगते हैं। आमीन आमीन। सभी को जय मसीह। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।